کہانی شروع ہوتی ہے 740 عیسوی میں۔ مارلن نام کا ایک بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے جس کے 3 چیلے ہوتے ہیں، بالتھازار، ویرونیکا اور میکسم۔ انہی دنوں ایک دوسری شیطان صرف جادوگرنی مورگانا نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہوتی ہے۔ بالتھازار اور ویرونیکا اس تباہی کو روکنے کے لیے مورگانا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اسی دوران مورگانا مارلن کے ٹھکانے پر حملہ کر دیتی ہے۔ دراصل وہ وہاں سے کوئی خاص طلسم چرانا چاہتی ہے مگر مارلن اسے قابو کر لیتا ہے۔ تاہم مارلن کا تیسرا چیلا میکسم مارلن کے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے اور مارلن کی مدد نہیں کرتا تو مورگانا مارلن کو چھرا گھونپ دیتی ہے۔ تبھی میکسم جادو والی بک سے مطلوبہ صفحہ نکال کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ مورگانا بھی وہاں سے نکل بھاگتی، ویرونیکا اور بالتھازار پہنچ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ویرونیکا مورگانا کے سول کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ مورگانا ویرونیکا کو اندر سے کنٹرول کر کے مارنے کی کوشش کرتی ہے تو بالتھازار انہیں بوتل میں قید کر دیتا ہے۔ مارلن مرنے سے پہلے بالتھازار سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے سب سے بڑے ڈیسینڈنٹ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ اسے ڈریگن کی ایک مورتی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پہنچتے ہی یہ مورتی زندہ ہو جائے گی وہی پرائم مارلینین ہوگا، یعنی کہ میرا سب سے بڑا وارث، اور صرف ایک وہی مورگانا کو شکست دے پائے گا۔ بالتھازار کو اس گدی نشین کو ڈھونڈتے صدیاں بیت جاتی ہیں مگر وہ اسے نہیں ملتا۔ اس دوران وہ مورگانا کے چیلوں سے بھی مقابلہ جاری رکھتا ہے اور انہیں پکڑ کر بوتلوں میں قید کرتا رہتا ہے۔ وہ مارلن کے غدار میکسم کو بھی پکڑ کر قید کر دیتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے ہزاروں سال بعد سال 2000 کے نیو یارک میں، جہاں ڈیو نام کا ایک بچہ اپنی کلاس فیلو بیکی کو لو لیٹر لکھتا ہے۔ بیکی اسے جواب لکھتی ہے جسے اس کے پڑھنے سے پہلے ہی ہوا اڑا لے جاتی ہے تو ڈیو اس کاغذ کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ کاغذ اڑتے ہوئے ایک دکان میں چلا جاتا ہے۔ ڈیو بھی اس کے پیچھے اندر چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ ایک بہت پرانے اینٹیک آئٹمز کی دکان ہے۔ دکان میں اسے بالتھازار ملتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میرا خط اڑ کر اتفاقاً آپ کی دکان میں آ گیا ہے، اس کے پیچھے آیا ہوں۔ بالتھازار اتفاق کے لفظ پر چونک جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، مجھے تمہیں ایک خاص چیز دکھانی ہے۔ وہ ڈریگن کی مورتی اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے تو مورتی میں جان آ جاتی ہے اور وہ رنگ کی صورت میں ڈھل کر ڈیو کی انگلی میں فٹ ہو جاتا ہے۔ بالتھازار اسے کہتا ہے کہ یہ بڑے راز کی بات ہے، تم ایک دن سب سے بڑے جادوگر بنو گے، ٹھہرو میں تمہیں جادو کی سب سے بڑی کتاب دیتا ہوں۔ اگلے سین میں بالتھازار کتاب لینے نیچے چلا جاتا ہے تو پیچھے ڈیو اس انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے جس سے ایک بوتل نیچے گر جاتی ہے اور میکسم آزاد ہو جاتا ہے، لیکن تبھی بالتھازار بھی واپس آ جاتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس سے ڈیو کافی ڈر جاتا ہے۔ لڑائی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بالتھازار بلاخر میکسم کو پکڑ کر ایک بوتل میں قید ہو جاتا ہے اور ڈیو سے کہتا ہے کہ وہ مورگانا والی بوتل کا خیال رکھے، مگر ڈیو باہر آ کر اس بوتل کو پھینک دیتا ہے۔ تبھی ڈیو کے دوست بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ انہیں سارا قصہ بتاتا ہے مگر کوئی اس کا یقین نہیں کرتا، الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ اس وجہ سے بلاخر ڈیو کو اپنا اسکول ہی بدلنا پڑتا ہے۔ یہاں پر کہانی 10 سال فلیش فارورڈ ہوتی ہے۔ ڈیو اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے جو فزکس میں بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی لیب بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایک روز اس کے پاس بیکی آتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بیکی ایک ریڈیو اسٹیشن میں جاب کرتی ہے۔ ڈیو بھی اس کے ساتھ جاتا ہے مگر جب وہ اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بجلی گرنے کی وجہ سے ریڈیو اسٹیشن کے سگنلز خراب ہو گئے ہیں تو ڈیو سگنلز ٹھیک کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میکسم والی بوتل اس وقت ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے، یعنی ان لوگوں نے اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ خرید لیا ہوتا ہے کہ تبھی اچانک بوتل ہلنے لگتی ہے اور میکسم اس میں سے باہر نکل آتا ہے اور بوتل کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ تاہم زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی بالتھازار بھی بوتل سے باہر آ جاتا ہے۔ اگلے سین میں میکسم ڈیو کے گھر پہنچتا ہے اور اس سے مورگانا والی بوتل کے بارے پوچھتا ہے تو ڈیو کہتا ہے کہ وہ تو میں نے وہیں پھینک دی تھی اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو میکسم اس کے پیچھے بھیڑیے لگا دیتا ہے۔ ڈیو بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتا ہے مگر میکسم بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ڈیو کو کوئی نقصان پہنچا پاتا بالتھازار بھی پہنچ جاتا ہے اور ایک بہت بڑے آہنی پرندے پر ڈیو کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ وہ ڈیو کو لیے ایک ٹاور کی چھت پہ جا اترتا ہے اور اس سے مورگانا والی ڈال کی جیسی بوتل کے بارے پوچھتا ہے، جس پر ڈیو بھڑک اٹھتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں 10 سال سے مصیبتیں اٹھا رہا ہوں، اسکول سے بھی نکالا گیا، آج تک مجھے لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ اسے ڈریگن والی رنگ بھی واپس کر دیتا ہے تو بالتھازار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مگر ایک بار وہ مورگانا والی بوتل ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، اس کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو یہ دونوں وہ بوتل ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، جبکہ دوسری طرف میکسم بھی اسی بوتل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگلے سین میں بالتھازار اور ڈیو بوتل کو ڈھونڈتے چائنا ٹاؤن پہنچتے ہیں، جہاں بالتھازار کو میکسم مل جاتا ہے
जिसने पहले ही वो बोतल ढूंढ ली होती है। वो बाल्थाजार से कहता है कि तुमने आने में देर कर दी, मैंने तो नेक्स्ट मोर्गेनियन जादूगर सनलाक को आजाद भी कर दिया है। तो बाल्थाजार सनलाक को नीचे फेंक देता है तो वो नीचे मौजूद डेव के पीछे एक जादुई ड्रैगन को लगा देता है जो वहाँ लगे मेले को तहस नहस कर देता है। दूसरी तरफ बाल्थाजार मैक्सिम को पकड़कर बोतल उससे छीन लेता है। उधर बाहर जादुई ड्रैगन डेव को मारने ही वाला होता है तो बाल्थाजार पहुँच जाता है और डेव से कहता है कि तुम इसे अपने जादू से रोक सकते हो। तो डेव अपनी अंगूठी के जरिए उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, मगर इस दौरान मैक्सिम वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से फारिग होकर बाल्थाजार डेव से कहता है कि अब आप आजाद हो, वो रिंग मुझे वापस कर दो। ताहम अब डेव का इरादा बदल चुका होता है तो वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बाल्थाजार को अपने साथ ही अपनी लैब में ले जाता है। बाल्थाजार उसे ट्रेनिंग देता है और उसे तरह तरह के जादू सिखाने लगता है। उधर मैक्सिम मोर्गाना के रूपोश चेलों को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक मशहूर जादूगर ड्रैक मिलता है। मैक्सिम उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ डेव की लैब में बेकी उससे मिलने आती है तो डेव उसे बाल्थाजार से भी मिलवाता है। वो उसे बताता है कि ये मेरे अंकल हैं। इसके बाद वो बेकी को अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स दिखाता है जिनके करतब देखकर बेकी बहुत महजूज होती है। अगले रोज डेव जब वॉशरूम में होता है तो वहाँ ड्रैक आ जाता है और डेव को मारने लगता है। तभी वहाँ मैक्सिम भी पहुँच जाता है। वो डेव से पूछता है कि बताओ वो बोतल कहाँ है। वो उसे बाल्थाजार के खिलाफ भी भड़काता है और धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे बोतल के बारे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेकी को मार डालूंगा। कि तभी बाल्थाजार भी पहुंच जाता है और मैक्सिम को अपने शीशे के जादू में कैद कर लेता है। इसके बाद बाल्थाजार और डेव लैब में आते हैं जहां डेव उससे कहता है कि मुझे आपने पूरा सच नहीं बताया कि इस बोतल में आखिर है क्या। तो बाल्थाजार उसे बताता है कि हजारों साल पहले मोर्गाना मार्लिन से इस तरह का मैजिक स्पेल चुराकर भाग रही थी जिसके जरिए वो सारे मुर्दा जादूगरों को जिंदा करके उनकी फौज बनाकर सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, जबकि मोर्गाना के मुकाबले में तुम ही ऐसे वाहिद शख्स हो जो उसे खत्म कर सकते हो क्योंकि तुम मार्लिन के वारिस हो। ताहम मोर्गाना से मुकाबले के लिए अभी तुम्हें बहुत तैयारी की जरूरत है। तभी डेव को याद आता है कि आज तो उसे बेकी के साथ घूमने जाना है जबकि अभी उसे लैब की सफाई भी करनी है। तो बाल्थाजार बाहर चला जाता है मगर डेव के पास वक्त कम और लैब बहुत गंदी होती है तो वो सफाई के लिए जादू का सहारा लेता है, मगर चूंकि वो ये स्पेल पहली बार इस्तेमाल करता है तो वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लैब पानी से भर जाती है और डेव बेकी के साथ भी नहीं जा पाता। बाल्थाजार आकर उसके स्पेल को रोकता है और फिर डेव को डांटता है कि ये क्या पागलपन है, जादू ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फिर वो उसे बताता है कि तुम मोर्गाना का सामना करने के काबिल तब होगे जब तुम ड्रैगन अंगूठी के बगैर भी जादू करना सीख जाओगे, मगर तुम तो अभी तक अंगूठी के साथ भी ठीक से जादू नहीं कर पा रहे। मगर डेव अपना सारा प्रोग्राम चौपट हो जाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसे कहता है कि मुझे ये तुम्हारा जादू का धंधा सीखना ही नहीं, ये निरी बकवास है और बाहर चला जाता है। डेव वहाँ से निकलकर गुमसुम रेडियो टावर की तरफ चल पड़ता है तो रास्ते में ही उसे बेकी देख लेती है। वो उसे उदास देखकर उसके पास आती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जिस पर डेव खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ड्रैक डेव का भेस बनाकर लैब में पहुँच जाता है और धोखे से बाल्थाजार को कैद कर देता है। साथ ही मैक्सिम भी पहुँच जाता है और डाल वाली बोतल ढूंढ लेता है। तो बाल्थाजार उसे कहता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, दोस्त ऐसे तो नहीं हुआ करते, जबकि तुम जानते हो कि मोर्गाना क्या चाहती है। तो मैक्सिम गुस्से हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड कहाँ से हो गए, हम तीनों ही मार्लिन के चेले थे, लेकिन मार्लिन तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहते थे। मैं वेरोनिका को पसंद करता था मगर वेरोनिका ने भी मुझे ठुकराकर तुम्हें पसंद किया। कि तभी बाल्थाजार एक हाथ आजाद कराकर उस पर हमला कर देता है, मगर मैक्सिम पलटकर उससे भी सख्त वार करता है जिसे रोकना बाल्थाजार के लिए नामुमकिन होता है। मगर ऐन वक्त पे डेव पहुंचकर उसे रोक लेता है तो मैक्सिम को डेव के हाथ में मार्लिन की अंगूठी नजर आ जाती है तो वो भाग जाता है। बाल्थाजार और डेव उनका पीछा करते हैं। रास्ते में ही दोनों फरीक अपनी गाड़ियों के मॉडल बदल बदल कर भागते और एक दूसरे को चेज कर रहे होते हैं कि बिलाखिर डेव एक जगह गलती कर जाता है और मैक्सिम उन्हें फंसाकर निकल जाता है। तो बाल्थाजार पैदल ही उसका पीछा करने लगता है तो वो सामने से आती एक लड़की को अपने जादू से वेरोनिका में बदल देता है और बाल्थाजार उस लड़की में खो जाता है। डेव जब उसके पास पहुंचता है तो वो वेरोनिका का ही नाम ले रहा होता है। इस दौरान मैक्सिम उनसे खो जाता है। वापस लैब पहुंचकर डेव बाल्थाजार से पूछता है कि वेरोनिका से आपका क्या रिश्ता है। तो बाल्थाजार उसे अपना सारा माजी बताता है। वो उसे एक नेकलेस भी दिखाता है जो उसने वेरोनिका के लिए खरीदी थी, मगर इससे पहले कि वो उसे दे पाता वो एक बोतल में कैद हो गई और इस सब की वजह मोर्गाना बनी। तो डेव उससे वादा कर लेता है कि मैं आपको हर हाल में वेरोनिका से मिलवाऊंगा। दूसरी तरफ मैक्सिम ड्रैक को मारकर उसकी अंगूठी हथिया लेता है और डाल वाली बोतल से एक और जादूगर लड़की को आजाद कर देता है। ये इसलिए कि उसे मोर्गाना को बोतल से आजाद कराने के लिए कम से कम 3 जादूगरों की अंगूठियां चाहिए होती हैं।
वो उस जादूगर लड़की से डेव की गर्ल फ्रेंड बेकी को अगवा करा लेता है। दूसरी तरफ बाल्थाजार और डेव भी डॉल वाली बोतल की तलाश में मैक्सिम के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर ये दोनों अलग अलग रास्तों से जाते हैं तो बाल्थाजार एक जादुई दलदल में फंस के रह जाता है, जबकि डेव डाल वाली बोतल तक पहुंच जाता है जिस पर वेरोनिका का चेहरा बना होता है। डेव डाल को उठा लेता है मगर तभी मैक्सिम बेकी को पकड़े वहां पहुंच जाता है और डेव से कहता है कि ये डाल और अपनी अंगूठी मेरे हवाले कर दो वरना मैं बेकी को मार डालूंगा। तो मजबूरन डेव को उसकी बात मानना पड़ती है। इतने में बाल्थाजार भी खुद को जादुई दलदल से आजाद करा चुका होता है। वो डेव से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, और ये कि अब चूंकि तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है तो अब तुम मोर्गाना के सामने नहीं जाओगे, अब मुझे अकेले ही उसे रोकना होगा। बाल्थाजार के जाने के बाद बेकी डेव से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तो डेव को मजबूरन अब सारे राज उसे बताने पड़ जाते हैं। वो उसे कहता है कि अब आगे के लिए मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए और एक दोस्त की भी। डेव अपने रूममेट बेनेट को कॉल करता है और उसे अपनी लैब बुलाता है। जब ये लोग लैब पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें नेकलेस मिलता है जिसके साथ बाल्थाजार की तरफ से एक नोट भी लिखा होता है कि ये नेकलेस वेरोनिका को दे देना। तो डेव समझ आता है कि बाल्थाजार जान की बाजी लगाने का सोच कर गया है, उसका वापसी का कोई इरादा नहीं। तो वो अपना टेस्ला कोयल वाला गैजेट कार पे फिट करके मैक्सिम की तरफ निकल पड़ता है जो मोर्गाना को आजाद कर रहा होता है। मगर डाल से मोर्गाना की बजाय वेरोनिका बाहर आती है क्योंकि इस अरसे में मोर्गाना ने वेरोनिका के जिस्म पे कब्जा कर लिया होता है, तो उसे अब उसके जिस्म से निकलने की जरूरत भी नहीं होती और वो आजाद होते ही मुर्दा जादूगरों को जिंदा करने के लिए अपना जंतर मंतर शुरू कर देती है। वो जादुई मंत्रों का स्टार बनाने के लिए टावर नुमा इमारतों की छतों पर लगी सैटेलाइट डिशेस का इस्तेमाल करती है। डेव भी ये सब देख लेता है तो वो बेकी से कहता है कि वो एक टावर पर चढ़कर एक डिश का रुख दूसरी तरफ मोड़ दे ताकि मोर्गाना के मंत्र रुक जाएं। तभी बाल्थाजार भी वहां पहुंच जाता है और मैक्सिम से मुकाबला करने लगता है, मगर मैक्सिम उसके पीछे एक बहुत बड़ा जादुई सांड लगा देता है जिसका मुकाबला बाल्थाजार के लिए मुश्किल हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। इधर मोर्गाना का स्टार भी मुकम्मल हो चुका होता है जिससे दुनिया भर के मुर्दा जादूगर फिर से जिंदा होने लगते हैं कि तभी अचानक डेव पहुंच जाता है और अपने टेस्ला गैजेट की मदद से मैक्सिम की जादुई छड़ी उसके हाथ से दूर फेंक देता है। तभी दूसरी तरफ बेकी भी एक सैटेलाइट डिश को घुमा देती है जिससे मुर्दा जादूगरों के जिंदा होने का प्रोसेस रुक जाता है और बाल्थाजार के इशारे पर उसका आहनी परिंदा सांड को पकड़कर उड़ा ले जाता है, जबकि मोर्गाना की शक्तियां भी पलटकर उसी के ऊपर आ गिरती हैं जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो बाल्थाजार वेरोनिका के जिस्म से मोर्गाना को अपने अंदर खींच लेता है, मगर मोर्गाना उसके काबू में नहीं आती और उसका जिस्म चीरते हुए बाहर निकल आती है और उस पर अपने सबसे ताकतवर जादू का वार कर देती है जिसकी काट किसी के पास भी नहीं होती कि तभी अचानक डेव इस वार को भी रोक लेता है, बावजूद है कि उसके पास अब अंगूठी भी नहीं होती। बाल्थाजार कहता है कि हाँ वो तुम ही हो कि तभी उसका ध्यान भटक जाता है जिससे मोर्गाना को मौका मिल जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देती है। इस हमले में बाल्थाजार तो लगता है कि मर गया है, जिस पर डेव गुस्से से आग बगोला हो जाता है और पैर दर पैर मोर्गाना पर वार करने लगता है, मगर मोर्गाना उसके हर वार से बच जाती है। तो डेव अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है, वो उसके वार खुद पे सहता जाता है और उसके साथ ही बिजली के तारों का जाल बुनता जाता है और उनसे वही टेस्ला वाला गैजेट बनाता है जो उसने अपनी लैब में बनाया था। और जैसे ही वो गैजेट मुकम्मल होता है, डेव उससे पूरी ताकत के साथ मोर्गाना पर हमला कर देता है और उसे जलाकर भस्म कर देता है। इसके बाद वो बाल्थाजार के पास पहुंचता है जो आखिरी सांसें ले रहा होता है। डेव अपने जादू से उसकी डूबती सांसों को बहाल करके उसे जिंदा कर देता है। बाल्थाजार उठकर वेरोनिका से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ बेकी भी टावर से उतरकर पहुंच जाती है और वहीं डेव को प्रपोज कर देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसी ही अच्छी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।